आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लो so that we get to see your reactions also. And बीच-बीच में reactions भी डालते रहना when people are introducing themselves and all, उससे हम भी motivate होते हैं बोलने में. Okay, so welcome everyone to OSA 2022 orientation, and we are so glad that you all could make it here. And it's an informal orientation, so don't hesitate. There are no teachers here, so you can ask us anything. And I personally, I would say for myself, कुछ पूछना हो तो दीदी बुलाने की भी जरूरत नहीं है. I'm comfortable with just calling my name. My name is Vidisha, and I'm going to introduce you to OSA today. So first of all, it gives me immense pleasure to welcome you all here today. And what is OSA? OSA is basically, it was founded in May 2019 under the able guidance of a faculty advisor, Dr. Surendra Kumar Sharma. So OSA is basically Optical Society of America. It is a society in America जिसका chapter, student chapter, we opened in our college so that we can expand OSA's reach from America to Indian students also. So that Indian students and students of our college could also opt for the benefits of OSA. And here at IGDTU chapter, we try to quench our curiosity in various scientific fields by conducting various seminars and organizing and participating in multiple competitions. And at IGDTU, it is one of the youngest chapter, this IGDTU Optica student chapter, and is one of the youngest Optica student chapters also. And we were formerly known as, by till last year, as OSA student chapter. And within a short span of time, the society has organized and participated in various national and international level events, like I told you just now, and we'll discuss our past events also in the coming 1 hour. So stay tuned. Next, we'll talk about our faculty advisor. So the faculty advisor of our society is Dr. Surendra Kumar Sharma. He is PhD in physics from Delhi University, MTech in engineering physics from Guru Gobind Singh Indraprastha University, and MSc physics from Delhi University. He has published numerous research papers in Scopus and in various peer-reviewed international journals. He is an able leader and guide, and his motivation and determination has led to the development of the society where it stands now. Now we are coming to the core members of our society. Yeah. So hello guys, a very good evening. This is Garima Sharma. I'm currently holding the position of president of the society, and I'm third year IT student, and my technical interests include cybersecurity, machine learning, AI, and data structures and algorithms, of course. So I would say that let's work together and learn new things every day with fun. So yeah, that was from my side. Hi everybody. Yeah. We welcome you all to our orientation, and I'm the Vice President of Optica IGDTU chapter, and I'm in third year. I'm machine learning and data science enthusiast, and I believe in teamwork. So we are open to all of you. We want you to join our society and work and learn and grow. So hope to see you guys in our team. So hello everyone, I'm Kriti Dubey and I'm the secretary at Optica IGDTU student chapter, and I'm currently a third year BTech IT student and an upcoming product intern at Adobe. So like this society is very special to me. Like the society really helped me in overall development. Like I used to be very shy and introverted person, and like I hope that it will help in your growth and development as well. So thank you for all for like joining today's orientation, and I hope to see you all very soon. Hello everyone, I am Tamanna. Currently is the position of treasurer in the society. So यहाँ पे एक बार आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स अभी एडमिशन जिन्होंने लिया वो हैं. मुझे 2 मिनट एक्चुअली बात करनी है आप लोग से.
Okay. Okay, so many. So, hello everyone. देखिए, अरे वाह, क्या बात है. अच्छा, ओके, hands down कर लीजिए, hands down कर लीजिए. That's good. तो सोसाइटी के थ्रू हमारी मीटिंग आप लोगों से होती रहेगी टाइम टू टाइम, लेकिन मैं इतना बोलना चाह रही हूँ एज बीइंग योर सीनियर्स, so you can come to us for any doubts, any queries regarding your society or your personal development or any doubt. Okay, if you are suffering through any kind of depression, any query. Okay, so okay, it's okay, good. All are welcome. ठीक है, सबका बहुत बहुत स्वागत है. और देखिए, आपको अभी इतना जो मैं स्टार्टिंग में सुन रही थी कि लोग बोल रहे थे कौन सी सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए, स्टार्टिंग में अभी हमें जो मींस पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या आगे भी आपको स्टडीज करनी है, अभी आप उस चीज का उतना टेंशन लीजिए मत. अभी आप यहाँ पे आए हो, यहाँ से नया कुछ सीखो. आपको ओसा ऑप्टिका ज्वाइन करना चाहिए. बहुत अच्छी सोसाइटी है, लिटरली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेनली टीम वर्क. बिकॉज यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, आपके सेकेंड ईयर सीनियर्स और कोर मेंबर्स और मेन कोर मेंबर्स, ऑल आर वेरी वेरी हेल्पफुल in all the aspects. So all the best from my side and best of luck. Thank you. Okay, my turn. So hello everyone, I am Vaishnavi Srivastava from IT branch, third year student, and I am executive officer at Optica IGDTUW. And Tamanna ने सब cover तो कर ही दिया है. So all that I want to say is कि join any society, be it Lenin या तारंगना या कोई भी society हो, definitely make sure कि join करो. मैं ओसा को ही obviously बोलूँगी, but उसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज हैं हम लोगों के कॉलेज में. मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक ज्वाइन कर लो. एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये सब हम लोग बता देंगे. सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. Hi guys, I am Vidisha. जैसे मैंने introduce किया था starting में, I am the management head and I was recently elected as the management head and I am EC second year. And if you guys have any doubts, feel free to DM me at any point of time. You'll have my number from the group. And not just study related doubts, you can come to me if you have any, have anything that's bothering you a lot. And as for Optica is a very great society. Here you will get to quench all your curiosities. Like there are many subfields which we'll talk about in the upcoming slides, but you will see that there are many fields that you can venture into. So I hope you all join and I hope to meet you all soon. Hello guys, welcome everybody. I am Srishti Kumari from CSAI second year and holding the PR head position at Optica. बाकी सीनियर्स ने तो हमारा सब कुछ कवर कर ही लिया है, बट मैं यही कहूंगी कि एटलीस्ट अपना फर्स्ट ईयर नहीं बट फर्स्ट सेमेस्टर सब सारी सोसाइटीज में प्लीज ज्वाइन करो, एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो. और हमारी ऑप्टिका सोसाइटी के सीनियर सच में बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव है. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी. Hi freshers, I am Sejal Ahoja. I am the outreach head and I'm from electronics and communication branch and I'm currently in my second year. And OSA is a very great society, not only for learning the technical things and going into research, but it offers you a lot of teamwork also. So the team is great and I'm looking forward to working with you all. And also you can reach out to me in case you have any doubts. I'll be happy to help you all. Thank you. Hi guys, I'm Nancy Rani, the member welfare head of the society, and I'm currently in second year BTech CSAI. And अब तो सबने सब कुछ ही बोल दिया, सीनियर्स ने और अदर कोर मेंबर्स ने, तो मैं क्या ही बोलूं. ओके, सो आई वेलकम यू ऑल. और कोई भी डाउट है कभी भी आए, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम. आई विल बी देयर फॉर यू गाइस. ओके, यस. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. Okay, so hi everyone. I'm Mahika and I'm the planning head.
I'm currently studying in second year and I'm an IT student. So मैं यही बोलना चाहूंगी कि तुम्हारी सीनियर्स बहुत प्यारे हैं. किसी को कभी भी अगर कोई डाउट हो तो कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, किसी को भी, सब बड़े प्यार से बताएंगे. एंड हमारी एक और प्लानिंग हेड है आयुषी गर्ग, बट शी कुड नॉट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग बिकॉज शी इज नॉट वेल. Hi guys, my name is Vatika and I am in MAE second year. So basically मैं तुम्हारी creative head हूँ, उषा की recently elected. And देखो तुम्हें कोई भी doubts हो किसी भी तरीके के, चाहे वो MAE से related हो, चाहे वो तुम्हारे अपने doubts हो, या तुम्हें just vent out करना है, you can come up to me and talk to me. And मैं एक चीज बता देती हूँ, if you join up OSA, it is a very warm place, you know. I myself joined it and felt it was a really good society, and you can really, you know, learn a lot of things here because there is a variety in our society of things. Like it's not only just one thing, like about opticals or something like that. You can also go to tech or something thing that you want, but you have to explore for yourself. तो जैसे मैं अपने लिए अभी भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को लाइक यू नो वो चाहिए रिलेटिवनेस मेरी तरह, तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर विद मी. सो I welcome you all to our society. And by the way, can you guys show us a little, you know, reaction and, you know, interactiveness? I really want to see that. That's all I would say. Sejal, you're not audible. Sejal, you are not audible. Okay, so I'll just talk about the opportunities which you can get while being a part of the Optica student chapter. So you can get a chance to go to USA and attend a conference. One of our seniors, Diksha Kumari Deek, she got a chance to go to US and attend that conference. You can get a chance to be a part of the mentorship program that is organized by the main Optica USA chapter. And we also offer a chance to collectively work on research papers under the guidance of our professors. Next slide, please. You can be a part of the organizing committee of ASMET, which is a 2-day international conference that is conducted by a student chapter. And you can also get to travel to various places as educational trips. And we'll also help you guys in developing your overall personality. And this year we are starting with a mentorship program wherein we'll not be only talking about the research opportunities, but about web development, AI, ML, cybersecurity, etc. Okay, so let's talk about the clubs under Optica student chapter, IGDTUW. Okay, so talking about the first club, that is the Astrophotography Club. So as the name suggests, it involves the astronomical photography of celestial objects and events. We have Dr. Parminder Singh to mentor us for the same. Last year, we had an online session regarding astrophotography, which was an amazing session where the students were shown the live pictures of the moon. Not only they learned about the Sky Safari astronomy app, but they also learned how to use it, which was done under the guidance of Dr. Parminder Sir. Our society also conducted another session about black holes, which was really informative and an interesting session. Moreover, if you're a part of this society, you can carry out studies on celestial bodies and explore them. So if you're really enthusiastic about astrophotography, then you should definitely join this society. Hi guys. So Research Club is a club that we started last year, and in that some people are not able to talk to teachers. Go ahead and talk to them about, oh, so we would like to do a research internship or simply research under you.
but we will provide you with that chance. You can come to us, we'll form groups, and with people who have similar interest as you can form groups yourself. And then we'll talk to the teacher, and then teacher can, we have many teachers under this research club, and they'll be very interested to meet you all and help you further, like, get further help you out. So that's our research club. Hello guys, OSA student chapter, Optica student chapter involved in conducting so many international conferences such as ASMET. ASMET 2021 was conducted on 28th and 21st December, and there you can get a chance to show your research papers and get an overview of other research papers too. And you can get so many opportunities just like Dikshadi you have seen in the last slide. So thank you. And these are some glimpse of 2020 ASMET. Next. These are some glimpses of 2020 ASMET. 1 second, please. I want to say something. 1 second, please. सभी लोग लिंक बोल रहे थे. अभी चैट में मैंने व्हाट्सएप लिंक डाला. You can join from that link, okay? Don't message, otherwise this will go upward, okay? So anyone who wants to join Optica, there is a group, there is a link in the chat box. You can join through that link. Thank you. You can continue. And please show some excitement for this session through your reactions. Continue. Okay, so now we will be starting with her sessions that happened in Optica student chapter. And we really had, a variety of sessions that were done in our society. That was like astrophotography session. We had 3 sessions on astrophotography where we got to, again, as told by the other members, core members of the society, we got to click photos, got to see live, interview of the celestial bodies and everything. So it was again a very interesting sessions for us to attend. And then we went on to attend a session for research paper again, where we were taught how to write a research paper and everything you need to know about a research paper. And as a student, you really need to know about these papers, because you will have to yourself make 1 or 2 in the future. So it is a very necessary and important and helpful session for kids. And talking about the next session, which was actually a very inclusive session, that is like LGBTQ plus in STEM. And this session is actually a very great session for people in the community. Not only that, to also help spread awareness. So our society really, hosted that session too, if just so people can interact with the the experts and everything. And then again we switched on with our kind of the topic we were on, and then we went to IoT, that is Internet of Things, and we again got an introduction on our tech topic, Internet of Things, and we got to know many things about that too. So if you join OSA, you will get to Optica. You will get to know more about different kind of things, and there is a variety in which you can learn. If you want to stick to one thing, you can stick to one thing. If you want to learn multiple things, you can learn multiple things for yourself. So these were some of the sessions that happened in Optica. And if you want to have fun and also learn something, then do join us. By the way, these are some glimpses of our sessions that were conducted. So you can look at these too. Okay, guys, so it's part for the fun time. You guys can now ask questions from us if you have any doubts, and then we'll play the game. You guys can unmute and speak if you want.
How can we join Optica? Okay, so I'll brief about this कि अभी एक फॉर्म सर्कुलेट होगा, उसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भरना, देन वील कंडक्ट योर इंटरव्यूज. ओके, एंड इंटरव्यूज के बाद फाइनल जितने भी मेंबर्स सिलेक्ट होंगे, ऐसे हमारी कोई लिमिट नहीं है, बट जितने मेंबर सिलेक्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा. तो वील हैव इंटरव्यू वेरी सून. Are Don't there worry. prerequisites? What? No prerequisites at all. Only prerequisite is कि बस अच्छे से enthusiastically participate करना society में. This is the only prerequisite I would say. Nothing else. Yeah. और इंटरव्यू में भी कुछ hard चीज नहीं होता, आपको एक दूसरे को इंट्रोडक्शन होता है, so you can do. We just wish to get to know you better on one, you know. It's very informal interview, don't worry. और इंटरव्यू से डर के भाग मत जाना प्लीज, हाँ. क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू सुन के ही भाग जाते हैं, तो ऐसा मत करना, नॉर्मल बातें होंगी. So No, we do not. आप लोग chat box में लिख रहे हो. Do you want us to read from chat box or do you want to unmute and selection speak? criteria. You can unmute yourself if somebody wants. No criteria, guys. There is no criteria. Absolutely, कोई भी criteria नहीं है selection में, कुछ भी नहीं. कोई prerequisite और criteria नहीं है. आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए to learn more things. Yeah, we want this session to be talkative. Please talk with us. If you want to ask something, please हाँ unmute guys, yourself. unmute कर Do we लो. have नहीं to तो pay chat to करके get किसी into the society? No. What? Please repeat. यार इट्स नॉट लाइक एनी फीस और समथिंग. एक्चुअली क्या है कि जो हमारा ऑप्टिका है, जो हमने जैसे बताया कि वो यूएस से बेस्ड है, ठीक है, मेन वही है. तो एक्चुअली उसका मेंबरशिप होता है, एंड उसके मेंबरशिप के $10 होते हैं, तो अराउंड ₹700 हमें पड़ता है. तो और वो 1 ईयर के लिए, 1 ईयर का ही है ना गरिमा, 1 ईयर का मेंबरशिप Yes, होता है. yes. 1 साल का. हाँ ठीक है. तो वो मेंबरशिप, वो जो आप पे करोगे वो हमारे पास नहीं आता, ठीक है, वो हमारे लिए नहीं है, वो उनका मेंबरशिप लेने के लिए है. और जब आप उसके ऑफिशियली मेंबर बन जाते हो तो आपको उसके बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि वो कुछ जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह भी भेजते रहते हैं, और उनके जो प्रोग्राम्स उनकी तरफ से आते हैं या जो ब्रांड्स होती हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं. फिर हम एक ऑफिशियल मेंबर कहलाते हैं. तो हम चाहेंगे Yes, कि अगर आप guys, ज्वाइन करो तो वो आप मेंबरशिप लो. Yeah, understandable. This Thank you. membership is very much compulsory for this to be a part of Optica, क्योंकि एक like US based organization की membership मिल रही है जिसमें आपको physics today and बहुत सारे journals आपके घर तक मिलते हैं, तो ये सब है, ठीक है. बट जो हमारे faculty advisor है सुरेंद्र सर, तो उनका ये point of view है कि बच्चों को आने दो, थोड़े दिन सोसाइटी में रहने दो, अगर उन्हें अच्छा लगता है they themselves take membership, ठीक है. तो what we want is कि अभी जब आप member बनोगे हमारे IGDTW chapter के, तो तुरंत मेंबरशिप मत लेना, कुछ मंथ्स वेट करना, 3 to 4 मंथ्स जितना भी है, उसके बाद मेंबरशिप लेना, अगर इफ यू फील कि ये यूजफुल है, ठीक है. तो ये हमारे फैकल्टी एडवाइजर सर का पॉइंट ऑफ व्यू था. And do we also have to pay for the events? नो No, नो, you don't. इट इज कंडक्टेड बाय IGDTW So, चैप्टर, किसी के लिए पे नहीं करना. Only 700 for first year. That's Yes, it. Yeah. for any year. Okay, यार okay. ये डाउट ना मैं आपका क्लियर करना चाहती हूँ. देखो, आप किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करते हो, यू नीड टू पे सम अमाउंट, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट एट द लास्ट ऑफ मोमेंट, राइट? मानते हो ना? कोई सुन रहा है? Yes. ओके. तो फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है. तो आप मेनली इस सर्टिफिकेट के लिए आप अगर सोसाइटी ज्वाइन करते हो, तो देखो, अगर आपको कॉलेज बेसिस पे सोसाइटी चाहिए तो आप किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो, दैट विल बी वेरी गुड. बट ऑप्टिका ऐसी सोसाइटी है जहां पे हम आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो चीज अलग है. अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपकी ऑफिशियल सर्टिफिकेट वहीं से आती है, ठीक है. हमारा उसमें कोई रोल नहीं है. अगर आप पे भी करते हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता है, सीधा उनके पास जाता है. आप जितना पे करते हो उससे कुछ ज्यादा ही वो लोग आपको देते हैं, ठीक हर है. साल का सर्टिफिकेट मिलता है. हाँ, एक्चुअली उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो फॉर्म जब आप भरेंगे उसके बाद ही आपको ऑप्टिका की तरफ से एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द चैट बॉक्स गाइस, कम ऑन. दी, हेलो दी. हाँ बोलो. हमें सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए क्या? No. नहीं, कोई स्किल नहीं होनी चाहिए. और आराम से. इंटरव्यू
इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू उस चीज के लिए होता है ताकि हम लोग आपके इंटरेस्ट जान सकें, या कि फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम कुछ और नए चेंजेस ला सकें, टीम्स में बांट सके हम लोग आपको, जिस टीम में जो हम लोगों को आपके लिए सही लग रहा हो, जो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों को डिवाइड कर सके। दी इसमें बेसिकली क्या सिखाएंगे? एक मिनट रुकना, ये चैट बॉक्स मैंने डिसेबल कर दिया दीदी चैट डिसेबल, करने या से। ओके कूल। हाँ सॉरी, क्या कौन पूछ रहा था? सॉरी आई मिस्ड इट। दी इसमें बेसिकली क्या सिखाएंगे, लाइक क्या चीजें, लाइक जैसे सी तुमने फर्स्ट देखा ऑफ ऑल तो ऑप्टिका है तो ऑब्वियसली ऑप्टिक्स वगैरह से रिलेटेड चीजें होंगी, रिसर्च के लिए होंगी जो चीजें, मतलब हम लोगों के जो प्रोफेसर्स हैं उनके अंडर आप लोग रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को। उसके अलावा हम लोग जैसे कोई भी टीम वर्क के लिए हम लोग का मेन स्पेसिफिक पर्पस हम ऑप्टिका आईजीडीटीयू का यही है कि आप लोगों को टीम वर्क सिखा सकें, और मतलब एक पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए तो हम लोग उस तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके बाद जैसे एस्मेट में आप लोग रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश करवा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और मतलब बेसिकली रिसर्च फोकस्ड सोसाइटी है। उसके अलावा एस्ट्रो फोटोग्राफी क्लब वगैरह। दी किसी भी ईयर में से ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट में नहीं किया तो सेकंड में कर लो, ऐसा कुछ? हाँ जी, कभी भी कर सकते हैं, बट ट्राई की फर्स्ट ईयर में करो, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में ना एक्चुअली हमारे पास टाइम होता है, वो सेकेंड ईयर के बाद आपको नहीं रहेगा उतना टाइम, क्योंकि फिर आपको प्लेसमेंट में बैठना होगा, इंटर्नशिप्स में बैठना होगा। तो सोसाइटीज का मेनली टाइम फर्स्ट सेकेंड ईयर ही होता है, थर्ड ईयर में जनरली कोर ही रहते हैं बच्चे, और थोड़े से मतलब हमें और कितना अगर हम टाइम बीच में देना छोड़ना पड़ेगा? चाहें तो छोड़ सकते हैं? हाँ जी, जब मर्जी तब छोड़ दीजिए वो तो। अगर आपको और नहीं सही लग रहा है तो मतलब स्टार्टिंग में, इसीलिए हम लोगों ने मेंबरशिप कंपलसरी स्टार्टिंग में नहीं करी है। यार देखिए सभी, आप लोग किसी सोसाइटी को अगर ज्वाइन करते हो तो ओरिएंटेशन इसी चीज के लिए होती है कि अगर आप ज्वाइन करो तो सोच समझ के ज्वाइन करो। ओके, आपको छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हो, लेकिन इट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड, ठीक है? नहीं सी अगर स्टार्टिंग में आप आप कॉलेज में, सुनिए मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनिए एक बार जरा। मैं ये बोल- बोल रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो मेन चीज यही है कि आप भी कुछ सीखने के लिए आए हो, ठीक है? यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग। ओके ओके दीदी। या एनी अदर क्वेश्चन? सी एक और चीज कि हम लोग इसीलिए मेंबरशिप कंपलसरी स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार ना सोसाइटी में आके देख लो, आपको अगर सही लग रहा है तो आप मेंबरशिप लो, क्योंकि फिर अगर आप 700 रुपीज लोगे तो आई डोंट थिंक कि आप चाहोगे कि आप किसी ऐसी सोसाइटी में फंस गए हो जिसमें आप काम नहीं करना चाहते हो। तो एक बार आप आओ, देखो, समझो कि हाँ आप रहना चाहते हो यहाँ पे, एंड देन जैसा आपका मन लेना है, अगर मेंबरशिप तो कूल, तो आप फिर मेंबर बन जाओगे 1 साल के। उसके बाद आई मीन अगर आप बीच में छोड़ते हो तो वो आप ही का नुकसान है, क्योंकि आप 700 रुपीज पे कर चुके हो। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आप देख लें। और दीदी हमें कितना टाइम देना पड़ेगा सोसाइटी को? बहुत ज़्यादा डिमांड सी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग डिमांड नहीं करते हैं, और इस समय तो आई गेस जब सेकेंड ईयर में बच्चे होते हैं, जब कोर बनते हैं, तब उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अभी तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एज सच काम नहीं देंगे हम लोग, तो सेशंस ही अटेंड करना है आप लोगों को। सेशंस अटेंड करिए, मेन चीज़ है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप सेशन अटेंड करिए, समझिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर अपना डिसीजन बनाइए। उसके बाद जब आप कोर बनते हैं तो आई गेस फिर वो 3 आवर्स अ वीक में भी, उससे ज़्यादा नहीं। और कई बार तो हम लोग कुछ 1-2 हफ्ते काम भी नहीं करते हैं। सेशंस की फ्रीक्वेंसीज ओनली लाइक 1 और 2 सेशंस पर मंथ, उससे ज्यादा पर रखते ही नहीं हम। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा आप पे लोड ना पड़े, इसलिए हम लोग थोड़ा उस हिसाब से आपके हिसाब, और वैसे भी जब आप कोर बन जाएंगे तो आपके हिसाब से ही फिर इवेंट्स होंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे इवेंट्स होंगे, क्योंकि अब तो हम लोग भी कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। तो फिर आप ही को डिसाइड करना है कि किस तरीके से चलेगी सोसाइटी। Yamini and Riya, do you want to ask something? यस यस दीदी, ये एच सोसाइटी है तो इसमें कोडिंग से रिलेटेड भी होता है या सिर्फ एस्ट्रोनॉमी वगैरह से नहीं, रिलेटेड? कोडिंग वगैरह सब होता है इसमें इसमें। कोडिंग हम से लोग related एक्चुअली
नहीं, एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग के में जैसे नहीं था। IoT है, IoT इज अ टेक्निकल थिंग, उसमें कोडिंग सिखाई गई थी हमें, आर्डिनो पे काम कराया था, तो इट्स मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हम टेक्निकल से दूर तो रह नहीं सकते, तो या सब होता है। हाँ, और बाय द वे अभी हम प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करने वाले हैं। हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप लोगों की, अगर आप ऑप्टिका ज्वाइन करते हो तो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स भी अभी से थोड़े बनवाने शुरू किए जाए, नई स्किल्स पे काम शुरू किया जाए। दी थोड़े से प्रोजेक्ट्स वगैरह का आइडिया दोगे आप? अभी we were going to start working on कार्बन रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करने वाले थे हम अभी, वेबडी एंड बट AIML पे भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ, एक्चुअली अभी हम लोग AI और ML पे तो कर रहे हैं, उसके अलावा फिर जैसे आपको अगर फिजिक्स वगैरह में से कुछ इंटरेस्ट है, जैसे एक कोई हम लोग का प्रोजेक्ट था टेलीस्कोप बनाने का, एक था रोबोबिन का, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा कोडिंग वगैरह के, जैसे अब वो आप पे भी डिपेंड करता है, अगर आप हम लोगों से आके बोलोगे कि हाँ दीदी हमें ये प्रोजेक्ट करवाओ, या फिर हम लोग चाहते हैं कि आप इस फील्ड में करवाओ, तो हम लोग उस पे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो वो आपके भी फीडबैक पे डिपेंड करता है, क्योंकि कौन सा बैच कितना फीडबैक दे रहा है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी चलती है। तो आप अगर खुद आके हमें बोलोगे तो हम लोग करवाएंगे। ये ऑनलाइन कैसे होगा, लाइक प्रोजेक्ट्स जी हाँ, तो ये जो रोबोबिन और टेलीस्कोप का है ना, ये हम लोग के टाइम पे होने वाला था, बट पैंडेमिक की वजह से वो रुक गया है, तो अभी तक वो रुका ही हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग कॉलेज वापस आएंगे तो हमारा यही प्लान था कि एटलीस्ट ये 2 प्रोजेक्ट्स तो हम लोग कंप्लीट करवाएंगे किसी तरीके से, तो वो दोनों देखना है। उसके अलावा आप जैसा मतलब और कोडिंग वगैरह से रिलेटेड AIML। What is the frequency of these astronomy sessions and all? Not astronomy sessions, astrophotography sessions. See, What, it sorry? depends on the teacher we contact with, and plus the sky अगर possible होगा। कई बार क्या होता है, sky होता है but we have our exam, so we can't do anything about it ना। Okay, okay. Okay, दी। रिया, हाँ जी दी, मैं ही बोल रही थी। आपने अभी भी हैंड रेज किया हुआ है। सॉरी सॉरी। एनी अदर क्वेश्चन? Any other? क्वेश्चन? दी कि जैसे आपने कहा कि हम टीम्स में डिवाइड कर देंगे बच्चों को उनके फील्ड के रिस्पेक्टिव, तो अगर नहीं मिलती है, किसी की फील्ड मैच नहीं होती है, तब आप क्या करोगे? तो आप हम लोगों को आके बताओगे ना कि आपका मतलब, जैसे अगर हमने आपको रिसर्च में डाल दिया, आपको नहीं पसंद था, या हमने आपको क्रिएटिव में डाल दिया जस्ट इन केस, और आपको नहीं पसंद है, तो आप आके हम लोग को बताओ, तो हम लोग उस हिसाब से फिर आपका जैसा आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आपको डालेंगे। उसकी आप चिंता मत करो, वो सब वो नहीं होगा। थैंक यू। नहीं, हम पहले भी तो फॉर्म फिल करवाएंगे ना, आपसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही, आपका इंटरव्यू भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा पहली बात तो पहले फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सेग्रीगेट चेंज हो जाते हैं, इंटरेस्ट भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं, मिड ईयर में ऐसा भी हो जाता है, तो उस हिसाब से जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग। इट्स ओके, ऐसा कोई रिजिड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही या उसमें आप रहना एक है, में आ गए हो सर्कल तो में। ये सारी बातें आप लोग मतलब जब ऑन लेटर स्टेज सब मेंबर वेलफेयर हेड नैंसी उसको कम्युनिकेट करना है डेफिनेटली। दी कितने सर्कल्स है, लाइक अलग अलग कितने क्या क्या है? लाइक वी हैव क्लब्स और टेक्निकल सेशन तो होते हैं, टू क्लब्स कौन से हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी और रिसर्च, और टेक्निकल सेशन तो थ्रू आउट द ईयर चलते ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल हम नहीं रोक सकते क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। बाकी हमारे अंदर क्लब्स जो है वो 2 है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल चलते रहते हैं साल भर। उसके अलावा रिसर्च का एक स्पेशल क्लब है और एस्ट्रो का एक स्पेशल क्लब है, एंड अभी हमने रिसेंटली मेंटोरशिप रिलेटेड भी स्पेशल शुरू करा है। अच्छा, मैं ना किसी आप को लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट कहाँ से आएगा, या इतना कुछ अगर होना है तो कैसे होगा। एक चीज मैं बता देती हूँ, ऑप्टिका जो है वो हमें ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट वी डू। हम जितना यहाँ पे काम करते हैं उसके हिसाब से ऑप्टिका हमें फंड्स प्रोवाइड करता है, और वो फंड्स लैक्स में होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो आप लोग जो भी करोगे उसमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पक्की बात है, ठीक है। यार चैट टेबल कर दो यार। अब प्लीज चैट टेबल कर दो अगर वो लोग
एक्चुअली कुछ पुराने चैट्स भी है, उनको पढ़ के भी आंसर कर देते हैं एक बार अगर कोई डिफरेंट हो तो। हाँ, अभी किसी को अगर कोई बात पूछनी है या अब भी कोई डाउट है तो अब आप चैट में लिख सकते हो, और किसी को बोलना है तो आप बोल भी Are सकते हो। the trips बताइए। funded? Yes. यस, हम जो भी इवेंट करते हैं कंप्लीटली फंडेड। देखो, IGDTUW चैप्टर, ऑप्टिका IGDTUW चैप्टर के जो भी इवेंट्स हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। बट जो ऑप्टिका के इवेंट्स होते हैं जो हमारे चैप्टर के नहीं है, इट्स ऑफ ऑप्टिका, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेने के बाद ही एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, तो हमारे साइड से जो है वो कंप्लीटली फंडेड होंगे। यामिनी, यस बोलिए। दी रिसर्च वर्क थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे टेलीस्कोप है वो हम डेवलप करते हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं या उससे हम प्लान वगैरह को सर्च कर रहे हैं? इस चीज के लिए भी प्रॉपर सेशंस मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई टेलीस्कोप बनाना ही है तो यहाँ पे उसका सारा सामान भी आएगा, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो भी आएंगी, सेशंस भी दिए जाएंगे और आपको हर चीज की नॉलेज भी दी जाएगी। ठीक है। Yes, दी, क्योंकि I was interested in astronomy from childhood, so that's why I was pursuing. ओके, एस्ट्रोनॉमी, ओके, दैट्स गुड। आपको मजा एक आया? क्वेश्चन है कि रिया ने पूछा है, इज इट कंपल्सरी टू अटेंड ईच एंड एवरी इवेंट दैट इज कंडक्टेड? देन देखो, अगर कोई इमरजेंसी आती है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, यू कांट अटेंड, बट ट्राई योर बेस्ट टू अटेंड ईच एंड एवरी इवेंट, नॉट जस्ट द वंस दैट इंटरेस्ट यू। नॉन टेक एंड टेक जो भी होते हैं साल भर, यू गाइस शुड ट्राई टू अटेंड, कुछ नया ही सीखने को मिलता है। यार आपकी सोसाइटी है, ठीक है, अगर आप मेंबर हो तो आपकी सोसाइटी है। ठीक है, अब इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है ना। अगर आपकी सोसाइटी कुछ करवा रही है, कुछ भी इवेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट तो आप ही लोग करोगे। डोंट यू थिंक सो? एंड प्लस जिन टीचर्स को हम बुलाते हैं बात कर कर, उनसे भी एक रैपो बनता है, एंड इफ पीपल डोंट शो अप देन हमारा भी क्या नाम रहेगा, फिर वो आएंगे नहीं ना फ्यूचर में। एंड यस, यू कैन बी पार्ट ऑफ बोथ द क्लब्स, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही क्लब का पार्ट होना है। मैं एक चीज बोलना चाह रही थी कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट द फैक्ट कि इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू में यार तुम लोग जो पूछ रहे हो ना, इंटरव्यू के लिए पहली बात तो डरो मत। मुझे भी बहुत डर लगता था। आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। ओह सॉरी, मेरा चश्मा गिर गया। बहुत अच्छा, एकदम फैब, यू लुक अमेजिंग। थैंक यू यार, थैंक यू। मैं क्या बोल रही थी, डरो मत, मैंने भी बहुत गलतियां की है, यू नो, कॉन्फिडेंस ना होने के कारण इंटरव्यू के टाइम पे, एंड यू विल थिंक लाइक यू डोंट हैव समथिंग दैट यू वर नॉट सिलेक्टेड और समथिंग लाइक दैट। ये चीज मत करना, बस एक वो रखना कि तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक होना रहेगा और कॉन्फिडेंट रहना। तुमसे पूछा जाएगा मैक्स टू मैक्स तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को लाइक तुम कैसे सपोर्ट करते हो, like how do you How much efforts do you put in? how much effort do you put in, how much experience do you have, or even if you don't have any experience, are you willing to learn it? तो तुमसे बेसिकली ये पूछा जाएगा मतलब क्योंकि बेसिक लाइक व्हेन आई क्वेश्चन, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, मतलब जो कोई भी बता, मतलब वैसे कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं क्वेश्चन। एंड डरने की भी बात नहीं होगी, इट विल बी जस्ट वन पर्सन जिससे तुम्हें बात करनी होगी, वन ऑन वन मीट होगी। हाँ, वन ऑन वन होगी, इट विल नॉट बी लाइक अ ग्रुप मीटिंग। मैक्स टू मैक्स ग्रुप तुम्हारे लिए नहीं होगा, ग्रुप मे बी यू नो कोर मेंबर्स साथ में बैठे होंगे, बट तुम लोग अकेले ही आंसर करोगे, सब कुछ तुम्हारे और कोर्स के बीच में रहेगा, ना कि वो बाहर जाएगा। और लाइक डोंट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, जस्ट स्पीक, एंड अगर तुम्हें नहीं आता है तो वो भी बोल दो, लोग तुम्हें सिखाएंगे। लाइक मैं जैसे आई हूँ तो मुझे सिखाया गया है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी, मुझे सिखाया गया है 1 हफ्ते के स्पैन में। सो तुम्हें नहीं आता है देन यू आर विलिंग टू लर्न, यू कैन ऑल्सो लर्न। इफ यू नो देन हेल्प सपोर्ट द सोसाइटी, टेल देम कि हाँ मुझे आता है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और इन जनरल अपने आप को वो मत करना, यू नो, कॉन्फिडेंस मत लूज करना। ये तुम्हारे इंटरव्यूज कुछ खास नहीं होते, स्पेशली सोसाइटी के। कंपनी के तो डिफरेंट बात होती है, लेकिन सोसाइटीज के लिए इतना मत टेंशन लो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट बस।
तुमसे कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछेंगे, तुमसे बैठ के फिजिक्स के यू नो जेई के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि इसका आंसर करो तभी तुम्हें घुसने देंगे सोसाइटी में। तो ये फॉर ऑल है, इतना मत सोचो। चलो अगर कोई और डाउट्स है तो पूछो, देन वी कैन, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद द गेम। ओके, सो एक डाउट है जो मुझे डीएम में आया है, वो पूछ रही है कि रिसर्च करते क्या है हम, मतलब फर्स्ट ईयर में रिसर्च में क्या करेंगे हम। ओके, सो वो नहीं करोगे आप जो पीएचडी वाले करते हैं, यू विल एक्चुअली वर्क अंडर पीएचडी स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे एपरेटस आपको जो फिजिक्स लैब में आना चाहिए, और वो सिखाएंगे ही, दे आर योर मेंटर्स एंड यू आर मेंटीज अंडर देम। दिस इज व्हाट वी बेसिकली डू इन रिसर्च क्लब। तो आप लर्न अपने की फ्यूचर में कैसे करना है रिसर्च। या सो उससे आप सीखोगे, मतलब जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप एक रिसर्च पेपर में हेल्प भी कर पाए किसी की, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो दिस इज व्हाट इन रिसर्च क्लब। ओके, फिर गेम और स्टार्ट करते डी हैं। के साथ विदिशा बोल ले पहले। नहीं बोल, मैं तो गेम के लिए बोल रही थी, यू कंटिन्यू अच्छा, सेइंग अ पॉइंट। डी के साथ फॉलो अप करते हुए मैं ये बोलना चाह रही थी, आई डोंट नो अबाउट टेक्निकल ब्रांच में क्या होता है, बट कोर ब्रांच में अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर से रिसर्च पेपर में बेसिकली मदद भी करना आता है ना, अंडर पीएचडी स्टूडेंट्स और अंडर मेंटर, तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, एटलीस्ट थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। मैं बता रही हूँ फायदेमंद होगा। तो सीख लो रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं, क्योंकि मे भी तुम्हें बनाना पड़ सकता है फॉर योर ओन क्रेडिट स्कोर। एनी अदर डाउट्स तो पूछ लो। हमारी जो अब कॉलेज है, अब हमारी वीसी मैम भी थोड़ा रिसर्च पे फोकस कर रही हैं। वो भी चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर बनाए, रिसर्च में काम करें। और अगर आप किसी के अंडर रिसर्च आपको करनी है तो आपको किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी की तो गाइडेंस हमें चाहिए। तो वो हमें गाइड कर रहे होंगे, हम कोई टॉपिक चूज करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट का होगा, देन हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे हो, मे बी अगर आप फिजिक्स वगैरह से रिलेटेड सोच रहे हो तो आपको लैब में जाके काम करना पड़ेगा। अब ज्यादा मतलब कुछ बच्चे जैसे MLAI बेस पे कुछ करते हैं, तो ये सारी चीजें तो ऑनलाइन ही हो जाती हैं। तो रिसर्च में ना आपको गाइडेंस मतलब किसी ना किसी प्रोफेसर के अंडर ही करते हो तो पूरी गाइडेंस मिलती है। नहीं आता है ना कुछ भी तो भी सीख जाते हैं सारा कुछ। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी सारा रिसर्च पेपर बनाना सीख गई, तो ये हो जाता है। तो और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, थोड़ा करते करते हेक्टिक होता है बट इट्स नाइस। ट्राई करना चाहिए। और अब तो सब प्रमोट भी कर रहे हैं कि रिसर्च फील्ड में ज्यादा काम हो, क्योंकि ना बहुत ज्यादा आपकी लर्निंग बढ़ती है। किसी टॉपिक को, किसी टेक्नोलॉजी को बहुत ही वास्ट में डीप में जाके स्टडी करके कुछ चीज खुद से लिखना, ये अपने आप में बहुत लर्निंग वाली चीज है। तो आगे इसमें करना चाहिए, मतलब आप सोसाइटी की एंड से करो मत करो, कभी भी खुद से भी करो तो इट्स अ गुड थिंग। दी एक्चुअली आप बोल रहे थे कि जो ऑप्टिका के इवेंट्स होते हैं उसमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो वो अलग मेंबरशिप होती है? मेंबरशिप इवेंट्स की नहीं है, मेंबरशिप होगी कि आप ऑफिशियली ऑप्टिका के मेंबर हो गए। जैसे तुमने देखा था ना, हमने actually- एग्जाम्पल बताया था उन दीदी का, शी वेंट टू यूएसए फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, तो वैसी जगह जाने के लिए यू विल नीड द मेंबरशिप। वो ऑप्टिका आपको तभी पहचानेगा कि आप उसके मेंबर हो जब आपने उसका पे करके वो मेंबरशिप ले रखी है, तभी आप ऑफिशियली उनकी मेंबर तो जाने ये जाओगे। 700 जो पे करने हैं वही मेंबरशिप। ओके ओके। या बाकी जो आईजीडीटी के अंडर यहाँ जो कॉन्फ्रेंस मतलब सेशंस हो गए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए अगर आप ऑप्टिका स्टूडेंट चैप्टर के मेंबर हुए तो, मतलब हमारे स्टूडेंट चैप्टर के मेंबर हुए विदाउट पेइंग फीस। But it's very good to pay fees, and you get many things when you not just getting a chance to go abroad or getting chances for scholarships वगैरह, you'll also get magazines and you learn more. They conduct their own sessions जो वो सिर्फ members के लिए ही होता है। चलो फिर गेम खेलते हैं। कृतिका नेक्स्ट स्लाइड लगा दे। सो गेम हमारा इंस्टाग्राम पे होगा, प्लीज गो टू osa_IGDUW। सब लोग अपना इंस्टाग्राम खोल लो एंड देन विल स्टार्ट, ताकि कोई मिस ना करे। और कैमराज ऑन कर लो अब।
वितिका और कोई स्लाइड है इसके बाद, या तो फिर स्क्रीन शेयर हटा दे अब। सिर्फ यही स्लाइड है। हाँ तो स्क्रीन शेयर हटा दे, फिर सबके कैमरे ऑन करके दिखेगा। ओके। सनग्लासेस स्क्वाड में कौन कौन है? मैं तो ऐसे ही मेरी तरह पूछने वाली हूँ। गाइस कैमरा ऑन कर लो सब लोग। इट्स सनग्लास स्क्वाड विदिशा। So Can we join in any year or we have to join in first year? It's better to join in first year of free. रिक्रूटमेंट फॉर्म कब निकलेंगे? ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बस एक्टिव रहो, आ जाएगा वहीं पर। इंस्टा आईडी इज osa_igdtuw। वहां पे एक ऑलरेडी स्टोरी डाल रखी होगी कि मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, सेशन, वो दिख रहा है सबको? रुक जाओ, मैं हैंडल्स डाल देती हूँ। लिंक डाल दो ना, डायरेक्ट पेज पे जाते हैं, कोई डाल सकता है। हाँ इस कैमरा ऑन कर लो ना, बोले हम। In which year of college can we publish our paper? Publish paper ASMET से होता है। And दीदी आप बता दो थोड़ा इसके बारे में। यार पब्लिश तो प्रोफेसर करवाते हैं, जिस भी प्रोफेसर के अंडर आप करते हो, क्योंकि हम तो बैचलर्स डिग्री परस्यू करते हैं, तो हमें उतना पता नहीं होता कहाँ से पब्लिश कैसे कराना है। और जो भी प्रोफेसर के अंडर आप करोगे वो पब्लिश करवा देंगे, और ईयर स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, आप किसी भी ईयर में जाकर कुछ भी सीख सकते हो, काम कर सकते हो। तो रिसर्च पेपर आप किसी भी ईयर में बना सकते हो। पब्लिश करने का काम किसी प्रोफेसर पे ही छोड़ो, मतलब आप जब कांटेक्ट करो उनसे तो उनसे बात कर लेना कि जब हम ऐसा बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि ये पब्लिश हो, ऐसा ना हो ये बस बन के रह जाए। हाँ basically we are the middlemen, we'll provide you with connections to professors and teachers. कैसे ढूंढते हैं कि पब्लिश के लिए, मतलब रिसर्च के लिए क्या? टॉपिक्स कैसे ढूंढते हैं कि हमें See, जैसे either you can search for topics that interest you, or you can tell us किस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड प्रोफेसर से हम बात कराएंगे, एंड देन दे कैन टेल यू किस फील्ड में रिसर्च कर सकते हो हमारे कॉलेज में। एंड अफरीन अगर आपके पास भी कुछ सेकेंड आइडिया ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हो, बट क्योंकि सेकेंड ईयर में भी बिजी हो जाता है काफी स्केड्यूल एंड ऑल, थर्ड ईयर में फिर कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप, इसके लिए फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना बेस्ट होता है। ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप वो भी मतलब रिसर्च के लिए सजेस्ट कर सकते हो, एंड वी कैन गाइड यू फॉर दैट। ओके सो सबने इंस्टाग्राम खोल लिया? मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ जब तक ये लोग खोल रहे हैं। हमारे आई मीन सुरेंद्र सर के साथ आई गेस 2 बच्चों ने ऑलरेडी बना चुका है, तो यू कैन ऑल्सो, बट करना पड़ेगा तभी होगा। लो मजा आएगा हमें। ओके सो आई एम पोस्टिंग द फर्स्ट स्टोरी। सिंपल स्टोरी, जैसे स्टोरी से इंटरेक्ट करते हो क्विज के फॉर्म में, अगर मल्टीपल ऑप्शन होगा या यस नो होगा तो उस बेसिस पे होगा, एंड एंड में वील डिक्लेयर द विनर्स बाय टुमारो मॉर्निंग। ओके, जिसने सबसे पहले रिप्लाई करा दे विल बी द विनर फॉर ईच क्वेश्चन। देयर आर अराउंड 7-8 क्वेश्चंस। ओके सो आई एम पोस्टिंग द फर्स्ट स्टोरी, एंड प्लीज ओसा के वेब पेज को फॉलो भी कर देना, इतना दूर आए हो तो। हो गई पोस्ट, देखो। स्टोरी पे रिप्लाई मत करो, वहीं पर आंसर करो, वरना वो काउंट नहीं होगा। कुछ बच्चे स्टोरी पे रिप्लाई कर रहे हैं। ये वो आंसर ना क्लिक नहीं हो रहा है। होगा होगा, यस एंड नो वाला ऑप्शन होगा। हाँ हाँ, बट वो क्लिक नहीं हो रहा, यस और नो। उसको रीलोड करके देखो स्टोरी को, वैसे हो रहा है। करके देखो।
जल्दी जल्दी करो। पता I'm चला कोई और posting the तुमसे आगे next निकल गया। question. Okay, I'm posting the next question. First वाले का timer हो गया. जैसे ही हमारा जो ये जो गेम टाइम है खत्म हो जाता है ना, जैसे ही हम लोग एक वो भी बता देंगे। आई थिंक सो मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, तो वो भी हम लोग शेयर कर देंगे, साथ ही साथ पीपीटी। तो उसकी चिंता मत करो। Guys, second question भी post हो चुका है. I hope so दिख रहा होगा सबको. कौन यार, सब लोग ऑप्टिकल इल्यूजन के तो फैन हो गई। कुछ तो आइडिया होगा। मुझे एक्चुअली ना इस खरगोश की पूंछ बिल्ली जैसी लग रही है, सीरियसली। जल्दी जल्दी आंसर करो ना, मैं तुम्हारी बदले आंसर कर दूंगी, मुझे सारे आंसर पता है। हो गया. So I'll post the third question then. कितना time हो गया? हो दिख रहा गया। है? Okay, I'm posting the third question. मैंने बोला मुझे सारे आंसर आते हैं, मैंने गलत आंसर पे टिक मारा। Great. Also, guys, don't leave the meet. We'll have a group photo after this. मैं बता रही हूँ, ओरिएंटेशन के बाद किसी को बात करनी हो ना हमसे, तो वो भी हो जाएगा। Yes. एक सेकेंड। Timer हो जाए तो बताइए. I'll post fourth question. हो गया 30 seconds. Okay, guys, I'm posting the fourth question. ये बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ, आप लोग का है नेक्स्ट ओरिएंटेशन. बस हो ही गया. 2 क्वेश्चन और है. बस 2 क्वेश्चन और है। जिसको रहना है बाय द वे मीट में रह सकता है, जिसका ओरिएंटेशन नहीं अटेंड करना, जिसको भी। अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा. यार 30 सेकेंड्स का टाइमिंग दिया है, बट स्टिल देखो, मैं एक चीज बता देखो देती हूँ, वैसे भी पेपर में इससे जल्दी लिखना होगा, इसलिए हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। हाँ, लिखने की आदत भूल गए होगे कोविड के चलते. मैं बता रही हूँ, मेल पे भी पेपर सबमिट नहीं होंगे पूरे, जितनी स्पीड में तुम लोग आंसर मार्क कर रहे हो। चलो, आई एम पोस्टिंग द फिफ्थ क्वेश्चन. हाफ इसमें मिनट वो हो गया टाइप उसे। करने वाला है. ठीक है, इसमें चूज करने वाला नहीं है, टाइप करना है आंसर. एक बार रीलोड कर लो, वो हो जाएगा।
हो गया सारी किम्स का? I am posting the 6th question. यार कम से कम अपने सीनियर्स को तो बीट कर दो इस चीज में, हम नहीं कर पा रहे तो तुम तो करो जल्दी जल्दी। Next question I'm going to post soon. जल्दी करो। सेकंड एक सेकंड, इसका आंसर क्या है भाई? कौन सा क्लिकेबल नहीं है? सब क्लिकेबल है, रिफ्रेश करो, होता है इंस्टा पे कभी कभी ग्लिच ऐसा, बट सारे क्लिकेबल है हमारी तरफ से। मैं चीटिंग मार रही हूँ। मार लो, जो फर्स्ट होगा उसको आंसर पता ही होगा ना अच्छे से जल्दी। Okay guys, I am posting the last question now. कौन सा वाला नहीं हो रहा है क्या? ये प्रिज्म वाला? ओके गाइस, क्विज हो चुकी है, रिजल्ट पता चल जाएगा, हम व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे एंड इंस्टा पे भी तुम्हारी आईडीज को टैग करके पोस्ट स्टोरी डाल देंगे। क्वेश्चन 4 नहीं हो रहा? सब क्लिक हो रहा है, मैं अपनी दूसरी आईडी से कर चुकी आंसर। हाँ, सीनियर्स भी आंसर मार रहे हैं, सीनियर्स को फर्स्ट आना था। मतलब मैं ट्राई सीनियर्स कर तुम्हारे रही बदले हूँ। ज्वाइन करेंगे। सारे क्लिकेबल है। Stay tuned guys, मजा आने वाला है। और if you guys want to leave now, we are very thankful that you guys joined us and stayed till the end. And hopefully तुम लोग को मजा आया हो, and ऐसे सेशंस और क्विजेस होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में। Join this society so that you get to meet like-minded people who have interest in either astrophotography or research or astronomy or anything or physics in general. So this will help you cultivate a better mindset. So do join. It Yes was nice guys. talking to you all too. Same. Bye वैसे guys. किसी If को you want to कॉलेज leave, you can पूछना हो? leave. If you still want to stay and ask questions, most welcome. मैंने सुना ही नहीं था। डिस्कस करना है मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम द सोसाइटी, कुछ भी अबाउट एकेडमिक्स या वैसे कोई डाउट्स तो यू कैन डिस्कस। And do follow our Guys, Optica IG फोटो YouTube लेनी page. थी। बच्चे से कैमरा भी ऑन करवाना था। मैंने फोटो खींची थी, भाग गए कैमरा थे। ऑन था कई लोगों का। अभी लगता है बच्चे ना ये चीज जानते नहीं है कि बैठ के कितने मजे आते हैं सीनियर्स के साथ बकवास करने में। जब टाइम मिलेगा नहीं करने का ये, तब उन्हें दुख होगा। हाँ,